اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر دینی. یہ ہے اصطلاح میں، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں نبی علیہ السلام کی امت کے تمام مجتہدین، تمام علماء کا کسی دینی معاملے پر اکٹھا ہونا، اس کو کہتے ہیں اجماع. ایک طبقے کا نہیں، ایک جماعت کا نہیں، ایک مسلک کا نہیں. وہ کہا جائے گا کہ فلانے طبقے کا یہ اجماع ہے، فلانے مسلک کا یہ اجماع ہے. اس میں امت کا اجماع نہیں کہیں گے، اور عوام الناس اس میں ہے نہیں. سمجھ رہے؟ پیر صاحب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اگر بھائی سن رہے ہو، اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت ہیں کون پہلے یہ تو بتائیے. دیکھیں پیر صاحب، ہمارے ہاں دو جو بڑے مکتبہ فکر ہیں نا، وہ دو ہیں، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع ہے. جو اہل سنت ہے نا، میں بعد میں کہوں. جی لمبی بحث ہے بھائی جان، اس میں تھوڑا سا اگر پڑھیں گے تو بات غلط ہو جائے گی، لمبی چوڑی چلی جائے اتنی گی. پیچیدگی کیوں ہے اپنا پیر صاحب؟ نہیں دیکھیں میرے بھائی، کسی عالم نے، کسی طبقے کے عالم نے کچھ کہہ دیا، کہا کہ اجماع ہے، ہمارے نزدیک یہ اجماع ہے، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. لیکن امتی لفظ نبی علیہ السلام کے یہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ. امتی بھئی تمام طبقے وہ نبی کے امت ہے، تو ایک طبقے کا اجماع تمام طبقے کا اجماع تو نہیں ہوا نا. مثال کے طور پر اہل حدیثوں کا اجماع ہے کسی بات پہ، اس طبقے کا، تو وہاں دیوبندی کا شاید نہیں ہے. دیوبندیوں کا اگر اجماع ہے شاید اہل وہ کیا نام ہے بریلوی کا نہیں ہے. اہل تشیع کا اجماع ہے، وہاں دوسروں کا اجماع نہیں ہے. تو یہ جو ہے امت کا اجماع نہیں ہوا، طبقے کا اجماع ہوا. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے. ولید بھائی موجود ہیں آپ؟ جی جی میں موجود ہوں. نیچے بندے ہیں ان کو کال پہ لیا کریں، یا کسی کو اتارا کریں، کسی کے لیے جگہ بنایا کریں. سناٹا چھایا ہوا ہے. عامر بھائی جنہوں کی کال آئی ہوئی ہے انہوں واسطے تہاڈا ہونا بڑا خاص معاملہ ہے نا. میں کھانا کھا رہا، میں کیا کہ میں بزی ہوں ذرا، تے اور کسی بندے نے لے لو، تھلے مرزا صاحب دے پیروکار بیٹھے ہو، میں کہ لے لو. جی السلام علیکم ولید بھائی، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ لیں ان کو، ٹھیک ہے؟ میں نہ کام نہ پہ ہوں. بیٹھے 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 بھائی جان، بیٹھ جائے، بیٹھے بیٹھے. آپ اچھا بیٹھیں چلیں. بڑی جگہ. تسی عامر بھائی روٹی کھان جاؤ تد بھی نہیں آندے، تساں نہ جاؤ تد بھی نہیں آندے، بڑی مشکل آندے نے بھائی. میں بھی تہاڈی طرح ہونی کھانا کھا کے واپس آیا. شام کا کھادا ہے میں صبح بھائی ہاں کھا. جی میں رات کا کھادا. تسی صبح کا کھادا ہے؟ 12 ہو گئے نا، صبح کی کافی پیتی آئی، صبح کی کوئی شاید کھادی. عمر بھائی تسی کھایا پیا کرو، تہاڈا بہتا کام ہے. روزے کی پریکٹس کر رہا، میں صبح سوچا میں کہ روزے کی پریکٹس شروع کر دیے.
नहीं ठीक है। बाबा मैं 5:30 ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ 12 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। अब ठीक है, यानी कि चिड़ी रोजा सी ਤੁਹਾਡਾ भी। ਆਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। नहीं बेहतर हो गया। निशान साहब करो गल मैं सुनना। निशान साहब करो गल मैं सुनना पे। साल साहब आयो ज़िशान भाई ने शायद कोई गल करनी होवे। ज़िशान भी कर लो, कोई गल करनी है करो करो करो। नहीं मैं इधर खास तो नहीं से चले अमन नज़ीर साहब खाना खा रहे हैं, मैं तो कहूँगा थोड़ा सा खाना खा लें। लेकिन है कि सवाल मेरा छोटा सा ये वाला था कि भावला रानी के मतलब था थोड़ा सा, ठीक है। मैं असल में अमन नज़ीर साहब से ये जानना चाह रहा था कि अमन नज़ीर साहब पहली बात तो ये वाली कि भावला रानी ने जो दावा किया था वो मिर्ज़ा साहब के दावे से कितना पुराना था, और अगर तो आपके उसके बारे में थोड़ी स्टडी तो मुझे ये बताइएगा कि उसके दावे के एग्जैक्ट अल्फाज क्या है, मतलब वो अपने आप को समझता क्या था, और मिर्ज़ा साहब फिर उसके बाद बाहुला रानी को क्या समझते थे जितनी देर तक मिर्ज़ा साहब ने अपने दावे जात पेश नहीं किए। तो क्या आपको ये बात मिलती है कि मिर्ज़ा साहब की दावे जात जो से हो सकता बाहुला रानी को देख के उन्होंने ये सब कुछ किया हो? तो ये 2-3 सवालात हैं, अगर आप मुझे इसका थोड़ा सा जवाब दे सकें तो जज़ाकल्लाह। बस 2 मिनट पूरे घड़ी पे रख देते हैं। साल साहब को करो गलबात। सियाल साहेब। जी जनाब। अच्छा ये है सैयद अली मोहम्मद बाब जो हैं, उसने 1844 में दावा किया था और 1850 के करीब यानी कि वो कत्ल हो गया था। हुकूमत वक्त ने उसको संसार कर दिया था। दूसरा बहाउल्लाह जो है वो उसका यानी कि वही इल्हाम का तो कह लो तकरीबन 1852 के करीब दावा है, लेकिन बाकायदा जो दावा उसका था वो 1862 में उसने दावा किया था। और उसका दावा वो है, उसका दावा मसीह मऊद होने का है कि वो मऊद जिसका यानी कि इंतज़ार कर रहे थे, उसने बाकायदा खतूत लिखे थे उस वक़्त के ईसाई बादशाहों को भी कि वो मऊद जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो या जो वो आसमान पर चला गया था वो वापस आया है, तो उसका दावा ये है। और दूसरे नंबर पर वो जो अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करता है वो मज़र खुदा होने के अल्फाज इस्तेमाल करता है, यानी उसकी तहरीरों से ये साबित होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे बोलता है जैसे यानी खुदा ही बात कर रहा हो, तो उसका दावा मज़र खुदा होने का भी है। तो लेकिन मेन जो उसका दावा वो वही यानी मसीह मऊद का दावा है। बाकी जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये चालें चलता है, कभी ज़िल्ली नबी कभी बरूज़ी नबी, तो वो भी ख़त्म नबूवत के कैल हैं। वो कहता लिखते हैं कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब यानी कि एक किस्म का नबाए अज़ीम कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो वो कहते हैं ये नबाए अज़ीम है। और इसी तरह और अल्फाज भी यानी और वो अपनी टर्म में इस्तेमाल करते हैं बाकायदा। वो कहते हैं नबूवत आप वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है, जो सिलसिला नबूवत था, लेकिन अब एक नबाए अज़ीम जो कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये वो नबाए अज़ीम भी है और मसीह मऊद भी है। इसी तरह और भी काफ़ी उनके अल्फाज इस वक्त मैं शायद आपको ना बता सकूं। तो सयाल भाई ये जो बहावला रानी था इसकी जो अब ये फोत हुआ है तो ये किस सन में फोत हुआ है? ये 1892 में फौत हुआ है और तबई मौत मरा है। तो और दूसरे नंबर पर इनके ठीक है हम उनको भी झूठा मानते हैं, लेकिन उनकी बात में वज़न है, झूठे ज़रूर हैं लेकिन वो दलील पेश करते हैं अपनी तईद में दलील। वो क्योंकि अहले तशय्यो मज़हब से तल्लक़ रखते थे दोनों, सैयद अली मोहम्मद बाब और मिर्ज़ा हुसैन अली अल मरूफ बहाउल्लाह, ये दोनों अहले तशय्यो मज़हब से थे। पहले सैयद जो अली मोहम्मद थे उनका बाब कोई यानी ना ये बाब जो है ना कोई है दूसरा क्या है इमाम महदी के बारे में कोई है, यानी कि उसका दरवाज़ा जो है इस किस्म का कोई उनका है नज़रिया है अहले तशय्यो का।
تو اس کا دعویٰ باب ہونے کا تھا، اور یا امام مہدی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، امام قائم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا دعویٰ تھا۔ تو وہ اس کے بارے میں آپ بھی مانتے ہیں نا، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ سید ہوگا، تو یہ بھی سید تھا۔ دوسرے نمبر پر کوئی حدیث ہے اہل تشیع کی، کوئی روایت کہہ لو کہ اس کا نام میں علی اور یعنی کہ احمد کا نام ہوگا، تو وہ علی اور محمد کا نام ہوگا تو اس کا نام بھی علی یہ محمد تھا۔ اسی طرح وہ ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے خانہ کعبہ میں یعنی کہ جا کر لوگ اسے پہچانیں گے، تو اس نے باقاعدہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر دعویٰ کیا تھا کہ اے لوگو، جس امام قائم کا آپ انتظار کر رہے ہو وہ امام قائم آ گیا ہے۔ اور اس وقت کے جو تھے وہ یعنی کہ بادشاہ اس وقت کا تھا شریف مکہ یا کوئی تھا جو بھی تھا، اس کو اس نے خط لکھا، ایک بھی نہیں لکھے۔ میوٹ کر لو ذرا جی تشریف لائے ہوتے تھے۔ ہاں جی کرو بول۔ اس نے غالباً 3 خط لکھے تھے، دوسرا کیا نام ہے یہ اس وقت کے شریف مکہ کو بھی 3 خط لکھے تھے، تو اس لیے ان کی جو بنیاد ہے نا وہ کافی مضبوط ہے۔ اسی طرح اس نے پھر وہ دعویٰ کیا کہ وہ آنے والا مسیح بھی ایک قسم کا آنے والا ہے، تو 1852 میں اس میں نے دعویٰ کیا، دعویٰ نہیں کیا، وحی الہام کا، یعنی کہ اس نے کہا کہ مجھے وحی الہام ہوتا ہے، اور 1862 عیسوی میں باقاعدہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1892 میں وہ طبعی موت مرا۔ اور اس سے پہلے یہ شیخیہ فرقہ اہل تشیع کا تھا، جو یعنی کہ ان کا رستہ ہموار کرنے والا کوئی ایسا اس کے نظریات تھے کہ جو امام مہدی یا امام قائم ہے وہ بس جلد آنے والا ہے۔ تو یہ ہے ان کی کہانی۔ تو سیال بھائی یہ ان کا ملتا ہے آپس میں؟ مرزا صاحب نے دیکھیں مرزا صاحب کے جو بھی دعویٰ جاتے ہیں اس دوران بہاولہ تو موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم باقاعدہ طور پہ مرزا صاحب کی بکس کو 89 میں بھی، بکس تو چلو بہت پہلے لکھنی شروع ہو گئے تھے نا وہ، لیکن اگر ان کی باقاعدہ طور پہ جو انہوں نے بیعت لی ہے وہ تو 89 میں انہوں نے لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا اس سے پہلے یا 92 میں وہ بہاولہ رانی فوت ہوا تو مرزا صاحب کے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ یا پھر اس کے ساتھ کوئی مکالمہ یا پھر کوئی ایسی بحث مباحثہ بہاولہ رانی کے ساتھ کچھ ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مرزا غلام محمد کا بھائی عامر نذیر بولو، آپ بول۔ میرا خیال ہے ملاقات تو ثابت نہیں ہے کہیں پر بھی ان کی، لیکن ابو الفضل مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کو استاد کہتے تھے۔ بہاولہ ایرانی استاد ہے، مرزا قادیانی شاگرد ہے اس کا، یعنی سارے دعویٰ جات جو اس نے کیے ہیں نا وہ بہاولہ ایرانی کی طرف سے ہی دیکھ کر کیے ہیں۔ ہاں جہاں جہاں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، مثلاً اس نے شریعت اسلامیہ کو منسوخ کر دیا اور کہا قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرے پر وہی ہوئی ہے یہی کافی ہے، تو مرزا صاحب نے دیکھا کہ اس سے تو معاملہ زیادہ بگڑتا ہے، لوگ زیادہ بدکتے ہیں، تو مرزا صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اصل میں جتنا زور آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں اس بات پر نظر آئے گا نا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے نبی علیہ السلام سے ہٹ کر دعویٰ کرنا، قرآن سے ہٹ کر کوئی شریعت ماننا، یہ سارا اس کو سامنے رکھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جتنے اس کے دعوے ہیں وہ سارے ہم کفریہ سمجھتے ہیں، ہم تو شریعت کے اندر رہ کر نبی کے تابع، یہ سارا مطلب اس نے یہاں پر جو غلطی کی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کہنا ہے کہ وہاں سے اس نے سبق حاصل کر کے محتاط قدم اٹھایا ہے، باقی دعویٰ جات اس کو ہی دیکھ کر سارے کیے۔ مطلب اس کا تو امن نذیر صاحب یہ ہوا نا کہ مرزا صاحب کے جو آئیڈیل تھے، آئیڈیل ہی سمجھا جائے گا نا اس چیز کو، بہاولہ رانی تو ان کے آئیڈیل ہوئے نا، تو اس کا مطلب آئیڈیل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بیان کیجیے گا۔ 100% 100% ٹھیک ہے، سارے دعوے کوئی دیکھ کر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سال کا فرق آ رہا ہے سیال صاحب کا اور میرا خیال ہے کہ 1863 میں دعویٰ ہے اور موت 1894 میں، آپ 92 میں، یا مجھے غلطی لگی ہوگی، کوئی سال کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہی ہے پیریڈ۔ 90 کے بعد کی ہے نا، مطلب مرزا صاحب کی پہلی بیعت کے بعد کا ہی معاملہ ہے نا، اس کا اس کی وفات تو بعد میں ہی ہوئی نا، 90 کے بعد۔
मिर्जा साहब ने जो मसीह मौद होने का दावा किया उसके भी बाद बहाउल्लाह मरा है। उसके बाद बहावला मरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो मिर्ज़ा साहब के आइडियल वो थे, तो इसका मतलब है जहाँ पर मिर्ज़ा साहब को गैप नज़र आया, जहाँ पर मिर्ज़ा साहब को ये बात लगी, जैसे अभी आपने बयान किया है कि वो उसके तो दावा जात ये था कि शरीयत से भी बहावला का कह रहा था शरीयत को भी साइड पे करो, तो जहाँ पर मिर्ज़ा साहब को गैप लगा, मिर्ज़ा साहब ने उस चीज़ को फिल करने की कोशिश की, ठीक है ना, कि उस चीज़ को मैं फिल करता हूँ और मैं बहावला रानी की, जब वैसे भी जैसे आप बता रहे हैं कि 91 में तो या 94 में भी ले लें, डेथ होकर उसकी हो गई, तो इसका मतलब मिर्जा साहब को पहले से पता था कि ये बंदा जो सा इसकी ऑलरेडी एज हो चुकी हुई है। हाँ हाँ पता था, एक बंदा भी था, बल्कि मिर्जा साहब ने अपना जो लेक्चर है ना लाहौर वाला, उसका रूहानी खजाइन की वो कौन सी जिल्द में है, उसमें बाकायदा जिक्र किया हुआ है कि महमूद नाम का एक ईरानी है जो लाहौर में रहता है, वो मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मुकालमा करना चाहता है, और वो मुदय्ये मसीहियत का हामी है, ये अल्फाज लिखे हुए हैं, वो भी एक मसीहियत के मुदई का हामी है, यानी बहाउल्लाह ईरानी का हामी है, और वो बहाउल्लाह ईरानी भी मसीह मौद होने का दावा करता है। तो महमूद करना चाहता था इनसे मुनाजरा, तो वो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए, लाहौर में वो बंदा करना चाह रहा था। बाद में बिहाइयों के बड़े मुनाजरे हुए इनके साथ, लाहौर में हुए हैं, लुधियाना। अमर रज़ी साहब, आपको ये बात कहीं भी शायद मतलब आपकी तो माशाल्लाह तलीम बहुत ज़्यादा है इस मामले में, तो आपको कहीं से ही मिलता है कि जिद्दबाजी वाला चक्कर तो नहीं थे ये सारे के सारे, कि जैसे मिर्ज़ा साहब अपने आप को तो बड़े वो कहते थे ना कि मैं बड़ा आलम हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो आपको कहीं से ये नहीं लगता कि ये जिद्दबाजी थी कि बहाउल्लाह रानी के मुकाबले में अपने आप को पेश करना, ठीक है, कि अपने आप को उस जिद्दबाजी के तहत तो नहीं पेश किया गया? असल में यही है कि उसकी गलती को दुरुस्त करके अपने आप को उसी जगह पर खड़े करने का मतलब ही ये होता है। इसका नाम आप जिद रख लें, इसका नाम आप उससे बढ़कर बड़ा होने का, दुरुस्त होने का दावा कह लें, जो भी इसका नाम रख लें, लेकिन है तो यही कि जो उसने गलती की उसकी करेक्शन करके तस्वीर वही बना दी कि मसीह इब्ने मरियम फौत हो गए हैं, उनकी जगह पर मैं मसीह मौद होकर आया हूँ। यही दावा उसका था, यही दावा इनका था। इसको जिद कह लें या जो मर्जी कह लें, सही है, राइट हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लोगों को क्या बोलूँ इस बारे में, ठीक हो गया, सही हो गया। ना सिर्फ यहाँ पर ममासलत का ना, मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है छोटा सा ड्रॉप बॉक्स में, बिहाइयों में और मिर्जाइयों में किन किन बातों में ममासलत है। मैं समझता हूँ कि जो बहाउल्लाह की इबारतें हैं ना, बहाउल्लाह की इबारतें भी मिर्ज़ा साहब ने कॉपी की हैं। यानी वो कहता है कि मैं सो रहा था, मुझे वही की फूंकों से जगाया गया, वही की फूंकों से जगाया गया। यही मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही था, मुझे बार बार वही की बारिश की तरह वही मुझ पर नाज़िल की गई और मुझे मजबूर किया गया कि मैं मसीह मौद होने का दावा करूं। इबारतें भी इस बंदे ने उसकी कॉपी की बिल्कुल हैं। आपकी बात राइट है अमन नज़ीर साहब, उसके सबूत बताऊं कहाँ से मिलते हैं हमें। बिल्कुल आपकी बात राइट है। ये जो जंबा साहब है ना, जंबा ग्रुप जोन से, अगर जंबा की तहरीरात को भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपको यही लगेगा कि जंबा साहब ने भी जो तहरीरात की हैं वो मिर्ज़ा साहब से कॉपी की हैं। तो जैसे कि मिर्ज़ा साहब को बहावला रानी के दावाजात पहले थे और उसकी बुक्स भी पहले मौजूद थी, तो ये बात तो वाज़ेह है जैसे आप बता रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने तो बिल्कुल वहाँ से चीज़ें तो ज़रूर कॉपी की हुई हैं, ठीक है ना। और मिर्ज़ा साहब की बुक्स में भरी पड़ी हुई हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है ना। उसमें थोड़ा ऐड करके आगे करके और बयान करते, अलग बात है जैसे अब जंबा साहब ने किया। जंबा साहब ने मिर्ज़ा साहब की बुक्स पढ़ी हैं, वहीं से कॉपी की हैं और मेरे साथ हवाएं बातें करती हैं, मेरे साथ दीवारें बातें करती हैं, इस तरह के तो चीज़ें उनके अंदर भी लिखी हुई हैं सारी की सारी। हाँ जी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके तो आगे चला दिया। वो तो बात कॉपी कैसे, वो ये ना कि मॉडिफिकेशन तो करेंगे ना हल्की हल्की सी सारे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक होगा, जज़ाकल्लाह। बल्कि मिर्ज़ा साहब ने ही नहीं, उनके बाद में जो आने वाले हैं ना पेशवा, पेशरो जो उनके हैं, आप अंदाज़ा करें कि मुदय्ये नबूवत और मुदय्ये रसालत मिर्ज़ा कादियानी है, और उसको ये बात नहीं सूझी कि सूरा आराफ की आयत नंबर 35 में इजराए नबूवत या इजराए रसालत का जिक्र पाया जाता है। उसको ये बात नहीं सूझी। जो बाद वाले हैं उन्होंने ये बात कहाँ से पकड़ी है? सूरा आराफ की आयत 35 को इजराए नबूवत की दलील
बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने कैसे बनाया है, मिर्ज़ा ताहिर ने कैसे बनाया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया है। बहाउल्लाह का जो पैरोकार है ना गलपगाई, उसकी किताब खोलें, अल फ़राइद उसका नाम है। अभी ये कल मैंने स्कैन भी अपने भेजा मुझे, इन्होंने सियाल साहब ने मुझे कह रहे थे गल्ला मुड़ स्कैन गल्ला के ना गल्ला, तो इन्होंने स्कैन भेजा मुझे अल फ़राइद का जो तर्जुमा उर्दू में, उसमें सूरह आराफ की आयत को उन्होंने इजराए नबूवत के लिए पहले इस्तेमाल किया। उसको देखकर मिर्ज़ा कादियानी के जो पैरोकार हैं उन्होंने भी उसको कॉपी, सिर्फ बहाउल्लाह को मिर्ज़ा साहब ने नहीं कॉपी किया, बहाउल्लाह के दलाइल को मिर्ज़ा साहब के पैरोकार भी कॉपी करते आ रहे हैं कि सूरह आराफ की आयत को खुद मिर्ज़ा साहब को नहीं सूझी जो इनको सूझी है, या बनी आदम इम्मा या तयन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम, ये इन्होंने लिखी हुई है, ये वहाँ से लिया, बिहाइयों से लिया है। बिल्कुल बात ठीक है। ये मेरी बात हुई थी शाहद भट्टी की ब्रोड के ऊपर ना, एन जिश इनका ना कोई मुबल्लग है, एन जिश नाम के ना, जिशानी वो भी लिखता है अपने आप को, लेकिन एन पहले लगाता है वो, ठीक है ना। वो भी यही ना शाहद भट्टी साहब की ब्रोड के ऊपर पेश कर रहा था, और उससे जाके मैंने यही बात की थी, मैंने कहा मुझे मिर्ज़ा साहब की कोई भी एक बुक दिखा दो जहाँ पे उन्होंने सूरत आराफ की जो सी, तो आप बयान उसको, मैंने कहा जो तुम बयान कर रहे हो कहीं बयान क्यों, कहता है जी नहीं जी मिर्ज़ा साहब ने ये कहीं बयान नहीं की। मैंने कहा आप लोगों का ये दावा जाता है नहीं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वाज़ेह दलील और वाज़ेह चीज़ ये वाली आयत आप लोग पेश करते हैं, तो मैंने कहा मुझे ये बात है, एक चीज़ सामने पड़ी होगी मिर्ज़ा साहब उसको पेश करेंगे कि एक चीज़ कोसों दूर पड़ी होगी, मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो कोसों दूर चीज़ पड़ी है उसको देख लो, मिर्ज़ा साहब तो ये कहेंगे भाई सामने पड़ी है उसको देख लो। मैंने कहा इसका मतलब तो ये मिर्ज़ा साहब कोई साय से कुछ भी साबित नहीं हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा साहब ने याद पेश नहीं की। उसकी वजह ये वाली थी कि वो भावला रानी और जोन से हैं, याद पहले पेश कर चुके हुए हैं सारा कुछ, तो जिसकी वजह से है कि वो कहता है वो मान के गया यहाँ पर, वो कहता है जी हाँ जी वाकई मिर्ज़ा साहब ने पेश। मैंने कहा जब मिर्ज़ा साहब ने एक चीज़ को पेश नहीं की तो इसका मतलब ये है कि आप मिर्ज़ा साहब के अल्फाज को या तो डिनाई करें या तो उनकी बुक्स को कहेंगे भाई हमारे लिए हुज्जत नहीं है। आप लोग जितनी भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो सब मिर्ज़ा साहब की बुक्स के बरअक्स बातें कर रहे हैं, आप लोगों के अपने आप अपनी एक सोच समझ पेश कर रहे हैं, लेकिन आप मिर्ज़ा साहब की बुक्स पे नहीं पेश कर रहे हैं। मतलब आयत आप पेश कर रहे हैं लेकिन मिर्ज़ा साहब ने वो आयत पेश नहीं की, तो उस पर वो बात मानना है कि हाँ जी ये हमारी गलती, हमें नहीं इसको पेश नहीं करना चाहिए इस वाले को। ये बात वो मान के गया, कहीं भी आगे पूछ लीजिए आप उससे। हाँ, ये भी नहीं कि मिर्ज़ा साहब को कभी ये आयत जो है वो उन्होंने देखी नहीं, इस तफसीर बयान करने की कोशिश नहीं की। मिर्ज़ा साहब ने कई आयतें घर में बैठ के मुरीदों के सामने जब मजलिस लगती थी पढ़ी होंगी, उनका कोई मानी बयान किया होगा जो हो सकता है किसी अखबार में भी ना छपा हो, किसी किताब में भी ना छपा हो, इश्तिहार खत में भी ना छपा हो, मान लेते हैं। ये आयत तो बाकायदा लिखी हुई है, इसकी तफसीर लिखी हुई है, तफसीर मसीह मऊद के नाम से जो इनका वो बना हुआ है सेक्शन है alislam.com पे, वहाँ जाके खोल के देखें। सूरह को बाकायदा मिर्ज़ा कादियानी ने लिख कर उसकी तफसीर में जो बातें लिखी हैं उसको पता है कि ये आयत मौजूद है और इसकी ये तफसीर मौजूद है, लेकिन उसने ये तफसीर नहीं की जो मिर्ज़ाई करते हैं। तफसीर उसने की है लेकिन उसने कुछ और मानी मुराद लिया, यानी तज़किया नफ्स वगैरह उससे, कि जब अल्लाह के रसूल आए तुम्हारे पास आयतें पढ़ें तो तुम यानी उनकी ताबेदारी करना, मानना उनको वगैरह वगैरह, लेकिन उसने इससे इजराए नबूवत और इजराए रसालत की दलील नहीं पकड़ी। क्यों? या तो हो ना कि उससे नजरअंदाज हो गई, नजरअंदाज भी नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही ना, अपने दलाइल के लिए पेश नहीं ना की उन्होंने, अपने दलाइल के लिए इसको पेश नहीं किया क्योंकि इसमें इजराए नबूवत की दलील है ही नहीं। मिर्ज़ाई कहते नहीं, जो मिर्ज़ा साहब ने अगर नहीं पेश की तो इसका ये मतलब तो नहीं ना। पिछले हफ्ते पता भट्ट साहब से बात हो रही थी, कहते जो मिर्ज़ा साहब ने नहीं पेश की था कि इसका ये मतलब है कि मुआरफ खत्म हो गए हैं, हम नया कोई मुआरफ निकालेंगे कुरान में से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रॉब्लम ये है ना मोहम्मद नज़ीर साहब, ये लोग अपने आप को मिर्ज़ा साहब से ऊपर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं ना, कि मिर्ज़ा साहब भूल गए, मिर्ज़ा साहब को चीज़ों का पता नहीं चला, हमें अब पता चला, अब हम पेश करेंगे इन चीज़ों को। हाँ जी, है ही ऊपर। ये उस दौर में होते, इन्होंने मिर्ज़ा साहब को नबूवत सिखानी थी, पास बैठ के इन्होंने बताना था कि इसका ये लफ्ज़ बोलें, यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ऐसा ही हाँ भाई असद साहब, वो टांग साहब ने बता दिया, आपके सवाल का जवाब मिल गया जो आप नीचे लिख रहे थे कि वो शिया था, अहले तशय्यो से था, शिया नहीं था, और शिया नहीं, अली बाब। मैं भी बोलता हूँ शिया नहीं था, ठीक है। हाँ, को करें पेश वाला क्या था, ठीक है।
मैं अभी कुछ मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल उसके बहाउल्लाह ईरानी के हिसाब से नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स 832 पेज की किताब हो बोले ये खाली 100 पेज की है, तो उसके ऊपर आप क्या फतवा लगाएंगे? समझ नहीं आई बात, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई किताब 832 पेजेस की हो और आदमी बोले नहीं नहीं ये तो खाली 100 पेजों की है, 700 से ज़्यादा सफ़े खा ही जाए, उसको आप क्या कहेंगे? पता नहीं आप किस सेंस में बात करें, ऐसे कोई क्यों कहेगा भाई? हाँ ये मेरा रोना है। ये अस्कानी साहब बैठे हुए हैं, मैंने कहा लतखान फी उलूमुल कुरान अरबी जो किताब है 832 सफ़ों की है, अब ये कहते हैं 100 सफ़ों की है। अब हम दोनों में से एक बंदा झूठा है, आप फैसला कर दें, किताब खोल के सर्च कर लें गूगल पे, पहली जिल्द कितने सफ़ों की आती है आपके पास? कौन सी किताब? लतखान फी उलूमुल कुरान हाँ, अल्लामा स्यूती की, ये 100 सफ़ों की है। ये उन्होंने कहा है 100 जी जी कल इनके साथ बहस होगी, ये कहते हैं 100 सफ़ों की किताब है। चले, वो अगर फारिग होते हैं तो बताते हैं क्यों उन्होंने कहा। मेरे पास उर्दू तर्जमा है, वो दो जिल्दों में है, तो इसका मतलब है वो ज्यादा है। उर्दू तर्जमा मेरे पास भी है, उर्दू तर्जमा मेरे पास भी हाँ जी। मौजूद है, वही उर्दू तर्जमा इन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, अरबी में बताओ, ठीक है, अरबी वाला तो मेरे पास है। लेकिन ठीक है, उनके लिए 100 निकाल के सफ़े रखा है। वाली लेकिन बात तो इन्होंने नहीं बहस है कर ली, इन्होंने ना, कहा ज्यादा। हाँ ये बात होगी, फिर लानत अल्लाह हिलल कादिबीन हो गया, बेहतरीन हो गया सिलसिला, मेहरबानी। नहीं, अगला मामला आपका क्या है ये आप जाने और अस्कानी साहब जाने भाई। 100 सफ़े की वो बात क्यों करते हैं? तो अस्कानी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछे ना भाई, क्यों 100 वाली तो बात ही नहीं ना, 100 वाली बात नहीं हो। इन्होंने कल बुक ओपन की और इनके साथ जो है बाकी लोगों ने भी तायद किया, कि नहीं वो दिखा रहे हैं तो है 100 ही सफ़े हैं, इधर मेरे पास 832 सफ़े आ रहे हैं। बिजी होंगे, एक बात को छोड़ दें। ये वैसे आमिर भाई ਇਹ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ उस्ताद नहीं कहना किसी ने, उस्ताद खाली आमिर नज़ीर भाई ने, उस्ताद को दूसरा बंदा नहीं है। ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਉਧਰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। हाँ तो उन्होंने कभी झूठा वाला दिता ही नहीं, झूठा वाला दिता तो उन्होंने भी कहेंगे लानत अल्लाह काज़िबीन। झूठा बंदा ते ए वे जेड़ा 832 सफ़े दी किताब है ते कह रहा 100 सफ़े दी किताब है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ। जेड़ा उन्होंने गल की हवाला ते पेश किया, हाँ वही कह रहे हैं सिक्का है ना, खाली पर्चियां लभदियां ने। उस्ताद क्यों कहीदा है? उस्ताद पर्चियां दे हिसाब नाल लेना, हवाला ते पूरा देना नहीं है, इन्होंने पर्चियां देनियां ने। अच्छा पहले मेरा ख्याल सी आमिर भाई कि अल्लाह इन्हां नूं हिदायत देवे, एक तो ये दुआ है, दूसरी तो भाईजान ये भी दुआ हैगी कि अल्लाह तुहाड़ियां अखां भी थोड़ियां खोले, मेरे ख्याल वो भी बंद ने थोड़ियां थोड़ियां। ठीक हो गया, अच्छा हो गया तुसीं दुआ दे छड़िए। मनु उत्थे कल्ला छड़ के आ गया, मैं उत्थे तुहानूं डिगन लगा, इत्थे फारग बैठे हो। उस्ताद जी मैं तो कुरान लैके आया सां, तुसीं दस्सिया नहीं कि कुरान जुम्मे च पढ़ के सुनांदे हो या नहीं सुनांदे हैं? मसनवी मौलवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ठीक है ना, हस्त कुरान दर जुबान पहलवी। तो इस तरह भी हो जाता है कि गधे से शहवत रानी करती थी जो बीबी, इस तरह भी थोड़े अंदर जायज़ है कि खोते दे नाल शहवत रानी हो सके, तो बाद चो हलाक भी हो गई है। साहब भाईजान मैं थोड़ी तबलीग कर रहा, ਇਹ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ? यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਵੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਵਤ ਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कादा जवाब? जी जी जवाब दोगे या नहीं जनाब? कादा जवाब? कि फिर कि खोते दे नाल भी शहवत रानी कोई कर सकती औरत? खोते दे नाल शहवत रानी कर सकती है? जी जी कहते तो मैं पूरी पढ़ देना। इस बांदी की दास्तान जो बीबी के गधे से शहवत रानी करती थी और उसने उसको इंसानों की तरह इंज ना पढ़ो, शहवत पूरा करना सिखा दिया था। नहीं मैं तो पढ़ के सुना रहा जनाब, नहीं अद्धी पिछदी गल पढ़िया नहीं हुंदा, तुसी भेज दियो। मैं पूरी कर रहा हूं, मैं भेजिया, मेरा गला सुक गया पुछ के, जवाब दे दिओ उत्थे जिथे तुहानू घल्लीए, मजबूरन आके इत्थे पढ़नी पै रही है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ तो फिर ये नहीं कितने फिर मौजू आएगा?
ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦਾ PDF ਘੱਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਫੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਘੱਲ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉੱਜਤ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਵਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮਾਨਵੀ ਹਸਤ ਕੁਰਾਨ ਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਨਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਿਖੀ, ਪੂਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰੁਕਾਂਗਾ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ है? जेड़ा शख्स ऐ कहे कि इस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान ठोकरें खाता फिर रहा है, गुस्ताख है या नहीं है? उर्दू दी तहरीर है जी ना लफ्ज़ां या किसी दी ट्रांसलेशन? हाँ जी, उर्दू दी तहरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ रहे हैं मैं। लफ्ज़ अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब तक देखा ना जाए पूरी गल पूरी राय है या नहीं, मैं पूरी गल तो कर देंगे, टेंशन ना लो। मैं कदी पूरी गल भेजो, पूरी गल भेजने, लेकिन मैं कह रहा कि जेड़ा शख्स भी है गल कहंदा या लिखदा है कि रसूल दी तौहीन करदा या नहीं करदा। देखेंगे भाई वैसे छोटी एक आमिर भाई अर्ज है कि असद साहब ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਰੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तो आज जाके ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਸ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹਿ ਕੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। बुलाओ, बेशक बुलाओ, बिस्मिल्लाह बुलाओ, लेकिन गाली बाजी में मेरा काम नहीं है। हाँ मैं भाई एक मिनट गाली बात, खामोश रहो। अच्छा जेड़ा कहंदा है जिक्र हुसैन तौहीद दे सामने इंज ही है जिवें कस्तूरी दे नेड़े गूं दा ढेर हुंदा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਾਤਲ ਦਾਵਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਬਾਤਲ ਦਾਵਾ? ਬਾਤਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾਵਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੋ ਹਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਪਾਓ ਹੱਲਾ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ मैं कह रहा 1 सेकंड लगेगा, यजीदी टप के बाहर आएगा। इंज मैं पे कहना रोला पाओगे, मिहनत करने पे आ भी जेड़ा बंदा तुसां सानू आखिया तहरीर पेश कीती है, साडे को तहरीर लै लो। जेड़ा बंदा ये कहंदा है कि जिक्र हुसैन तौहीद दे जिक्र दे बिल मुकाबल इस तरह ही है जिस तरह तो कस्तूरी दी खुशबू दे कोल गूं दा ढेर हुंदा है। तहरीर पेश करो, क्यों पिछलियां तुसीं जेड़ियां पर्चियां पेश कीतियां वो सारी गलत निकलियां। बिस्मिल्लाह करो, तहरीर पेश करो। मैं तो पहला पर्सनल दे अंदर एजाज़े अहमदी दा हुणे स्कैन सेंड ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ठीक है। ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, लेकिन मैं कह रहा आमिर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮਦਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਲੰਦ ਭੇਜ। ਉਹ ਅਸਦ ਲੰਦ ਭੇਜ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮੱਦਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਈ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ नहीं ਸਮਝੋ नहीं कि ना झूठ नहीं कहना। ये तहरीर देखे ना, फिर तहरीर मरोड़ के पेश की है ना। दिन ने मरोड़ मैं के क्या पेश की आज है, कल तो के लानत शिये, है, मैं हुने सवाल- आज कल के शिये वो काम दीनी काम नहीं कर सकते जो यजीद ने किए, मिलकर भी वो हाँ। दीनी काम नहीं कर सकते। क्यों तुसी छोड़ के आए? मतलब क्यों ਇਹ ਛੁੱਟ ਸ਼ੀਆ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਉਹੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ। नहीं, आजकल नहीं, के शिये मैं कह रहा हूं आजकल के शिया वो दीनी काम नहीं कर पाते जो यजीद ने किया है। यजीद की तारीफ नहीं हो रही, मैं कहना अखा ते उत्ते दूरबीन लाओ, तारीफ हो रही है कि चश्मा नहीं, यजीद ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ दूरबीन है। लाओ। मुश्किल ਉਹ नहीं, मैं कह यजीद रहा ਦੀ ਮਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, कवो यजीद दे उत्ते लानत करदे क्यों नहीं? ਓਏ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮਦਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਦਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਨੇ ਲਾਨਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੀਆਂ फिर ਕੋਲ यजीद दे मैं मदाहां ते भी लानत करने आ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਕ ਕਰੋ। ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਠਾ- ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਈ ਕਦੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲਾਨਤ- ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ- ਕਰ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ? ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। हाँ जी, आजकल तहरीर मेरे सामने नहीं है, मुझे जरा जुमला याद है, उन्होंने यह लिखा है कि आजकल के शिया मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते जो यजीद ने दीनी काम किया। ठीक है ना। ਇਹ सादा ਮਦਾਹ ਹੈ सवाल है देख, ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ सुन ਇਹ सुन ਮਦਾਹ लो ਹੈ ਕਿ ना, ਤਨਕੀਸ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। सुनते लवो ना, फिर बाद च रगा भुला लेना। साडा सवाल किसी कभी भी इल्मी बराड़ ते आई होंदा है, ठीक है। जिस ऐसे सवाल की वजह तो मैं ब्लॉक हो गया सैफी दी बराड़ ते उत्ते, वो लानत पा चुके हैं जो तहरीर पेश की थी, उन्हें मनो भी गाला दे के ब्लॉक कर सकते। ठीक है, सवाल मेरा है वे कि यजीद ने की काम ये किया मेरा जिहड़े असीं सवाल मिल तो के भी मुक्या नहीं कर नहीं। सकते। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ सवाल तो उदू ਮੈਂ करो ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫਿਕਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮਦਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਸ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ यजीद दी मदाह है, मदाह है, मदाह ते लानत है। ठीक है, ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜੇ। यजीद ते लानत है। मैं कह रहा हूं यजीद ते मदाह ते भी लानत पाई यजीदियां जे। ते लानत, ਯਜ਼ੀਦ यजीद ਤੇ ते ਮਦਾਹਾਂ लानत ਤੇ आएगी ਵੀ नहीं आएगी। ਉਹ ਭਾਈ टेंशन ना लो, मेरा ਉਹ जवाब ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਵੀ रिकॉर्ड ਟੁਰ है, ਜਾਏਗੀ टेंशन ਨਾ। ना दो। ਯਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜੇਗੇ। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ यजीद ने मदाह ते यानी लानत मिर्जा है, कादियानी ठीक है, ते लेकिन यानी मेरा मिर्जा कादियानी ते खलो तो जाओ। मिर्जा कादियानी ते लानत पाती जे। ਜਿਹੜਾ शैतानी अमल ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਓਏ ਅਸਦ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏ? ਅਲੇ ਖਲੋ ਜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮਦਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਦਾ। ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮਦਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਤੇ ਲਾਨਤ। मैं कह रहा ना ਇਹ शैतानी हरकत ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ? और ਸੁਣਤੇ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਏ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਦੇ ਅਮਰ ਭਾਈ। ठीक हो गया, और ਚਮਚੀਆਂ ਵਜਾ ਲਓ, ਕਬਗਿਰੀ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲ ਮਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੇ ਸੱਟਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਲੱਟ ਪਲੱਟ ਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਖੋ ਤੇ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਮਦਾਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਜੂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੁਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਮਦਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਦਾਹ ਪਹਿਲੇ ਜਮਿਆ ਹੈ। ਮਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਓ ਪਹਿਲੇ ਮਦਾ ਤੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਾ ਪਹਿਲੇ? ਕਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਮਦਾਹ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਇਹ ਮਦਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਓ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਛੜੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਰਾਇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਛੜੋ ਰਾਇਤੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਹੱਸ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਣਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਰ ਬਾਟ ਆਖਣ ਲਗਾ। ਆਖੋ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਮੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਕਰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣ ਅਸੇ ਪਾਓ ਹਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ। ਖਲੋ ਜਾ ਅਹਿਮਦ, ਖਲੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸਲ ਸਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਨੇ। ਅਸਲ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ? ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਨੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਣੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਹਾਂ ਪਰ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਭਾਈ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਅਸਤਗਫਾਰ। ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਮੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਪਾਓ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੱਦਾਹ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਅੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੱਦਾਹ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕਹੋ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਮੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਇਤਾ ਚੜਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸ਼ਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਥੱਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੱਦਾਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੱਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਦੋਂ ਪਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੱਦਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ। ਮੱਦਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ? ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੱਦਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਨਤ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਤਰਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸੇ ਕੋ ਮੋਤਰਫ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਤਰਫ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਦਾਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰ ਬਾਤ ਆਖੇਗਾ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚ ਗੈਰਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਤ। ਜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਮੱਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਨਤ ਪਾ, ਲਾਨਤ ਪਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂ, ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ ਯਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਯਜ਼ੀਦੀ
ਤੁਸੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ बड़ा अफसोस है, ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਛੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਈ ਨੂੰ ਛੜਾ ਤੁਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ मैं किते ਬੇਵਕੂਫੀ ते लानत पाई है, मैं कह रहा मैं जिते ते लानत पाई है वो यजीद है, यजीद दे पैरोकार ने, ਮਦਾਹਤ यजीद ਨਹੀਂ ने ਪਾਈ। चंगा कहना लेने, रहमत रहमत अल्लाह ਚੰਗਾ का ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ कहना ਮਿਰਜ਼ਾ लेने, ਹੈ, मदाहत ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ। नहीं नहीं क्यों क्यों फिर मिर्ज़ा सोचे आके जिन्हें भी नहीं स्कूल चंगा, उन्होंने आप- ना यजीद ते नात रखे ਤੁਸੀਂ जाते ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ क्यों अपने ਮਿਰਜ਼ੇ औलादा दे ना ਨੇ यजीद ते ਚੰਗਾ नात रखते हो? ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਾਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? मैं कहना एबलीसियत छड़ दियो, 55 साल ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ, एबलीसियत ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ? ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਛੜੀ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ। ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। खिलार नहीं है ना तो खिलारो, मैं कहना खिलारो, बिस्मिल्लाह करो, कहो यजीद ते ਤੇ लानत। ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦਾ ਹੈ कहना- ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਆਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। मैं कह रहा यजीद ते लानत है, कहो हाँ यजीद ते ਉਹ लानत, ਕੋਈ फिर ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਨਤ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾ ਰਹੇ? ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਾਨਤ, ਯਾਰ ਸੁਣ ਬੜਾ ਲਿਆ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਬੰਦ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। बड़े अफसोस है। ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ मैं मुंतज़िर ਮੇਰਾ व्हाट्सएप ਉਹ पे, ਕੀਤਾ- बिस्मिल्लाह करो। ਮੇਰੀ ਗੱਲ- मैं कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह करो, व्हाट्सएप पे आओ, मैं मौजूद हूँ। चालनी कुबरी है, चालनी कुबरी है पाल ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਠੋ ਖਿਲਾਰ ਸੜੋ ਯਾਰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਆਪਣਾ- ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਟੁਰ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਸੜੋ, ਖਿਲਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਦੜਾਇਆ ਬੰਦਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। मैं तो सिर्फ नहीं आख्या चालनी कुबरी है पाल हालत नस गया। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇੱਥੇ 700 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ 700 ਲਾਨਤ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲਾਲੇ ਲਾਨ ਪਿਓ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो मिन्नतां करता रहा कि तू लांत बेशक भाई नहीं पा दे। वाटर साहब मैसेज करने से बेहतर आप ऊपर आ जाए ना कॉल डाल के। कौन है? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿ 307 ਜੁਮੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੁਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੁਮਾ। ਸਫ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੁਮਾ? ਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਨ ਕਰਤੀ। WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਖਤਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਐ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, 8 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। असल विच आमिर साहब मोहम्मद वलीद साहब इस इब्राहिम ने जो झूठ बोला है पीर साहब को, वैसे भाई है झूठी पीर साहब, इसने पीर साहब को हवाला दिया तो पीर साहब ने किताब निकाली, इसने ये नहीं बता रहा था जिल्द कौन सी। इसको समझ नहीं आ रही कि एक किताब के 800 वर्के नहीं, और जो पीर साहब ने किताब पेश किया वो जिल्द अव्वल थी, उसके 100 वर्के हैं। ठीक है, तो ये कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। वो पीर साहब किताब पेश की, ओरिजिनल किताब वो दिखाई, उसके लिखा है 100 पेजेस। ठीक है, तो वो एक जिल्द थी, तो इसने कोई हवाला नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, तो वहां से भाग गया उस दिन।
तो अभी आके पीर साहब पर झूठ बोलता है। पीर साहब आए तो उनको पूछना, उनके पास वो किताब है। इससे पूछ रहे थे कि आप वो जिल्द का नंबर बताएं, रेफरेंस दें। तो ये सिर्फ किताब का नाम और उसके सफ़ों का पता है कि 800 तक कितने सफ़े हैं, तो ये किताब है और कुछ भी नहीं। जी बात करें। आवाज आ रही है? अभी आई है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा सारे चुप्पी कर गए, ब्रॉड बंद तो नहीं हुआ? नहीं, ब्रॉड चल रही है। अब मेरी आवाज आई थी, ये जो मैं जी जी आई थी, आपकी आवाज आई थी। और वोटर साहब असल में नहीं आ सकते ऊपर क्योंकि थोड़े थके हुए हैं। उन्होंने अभी 1.5 घंटा लगाया है अपने इम्तियाज भाई की ब्रॉड पर। अच्छा एयाज भाई, आप सॉरी वाटर साहब, आप किस जमात से हैं? मेरी जमात से? जी जी सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे इल्म नहीं था। नहीं, वोटर साहब जो है वो 1.5 घंटा अभी जो है वो इम्तियाज भाई के साथ बैठे हुए थे, बहुत मीठे बने हुए। तो एंड जो है देखिए वहाँ पे आपको पता है वो कितना झूठ बोल के आए, मैं भी वो ब्रॉड सुन रहा था। जी असल में वाटर भाई ने जितना भी वहाँ पे एक ऐसा झूठ बोल दिया है, वाटर भाई अगर यहाँ पे आ जाएं तो अच्छा, आए हैं थोड़ा सा नीचे, कोई कमेंट तो किया उन्होंने। अच्छा वाटर भाई से थोड़ा मुहाते नहीं कोई नहीं, अगर आना चाहे तो कोई मसला बात नहीं। अच्छा वाटर भाई ने वहाँ पे ना ऐसे ऐसे झूठ बोल के आए हैं जी, हमारे मुबल्लिगीन जो उनसे हैं वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, कम कम तनख्वाहों के ऊपर काम कर रहे हैं, देखिए उनकी तो सैलरी कोई नहीं है। वाटर भाई पहली बात ये वाली कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है? आपके जितने मुरब्बियान है ना, घर उनको जमात की तरफ से फ्री है, गाड़ी उनको जमात की तरफ से फ्री है, गाड़ी के पेट्रोल उनको जमात की तरफ से फ्री है, ठीक है? उसके बाद 40 घंटे की जो सैलरी बनती है, ठीक है, बेसिक सैलरी जो ये यूरोप के अंदर चलती है, ठीक है ना, वो भी उनको अलग से मिलती है, ठीक है? सारा खर्चा तो उनका जमात उठा रही है और ऊपर से बेसिक सैलरी भी दे रही है। एक बेसिक सैलरी जो एक आदमी हफ्ते के अंदर 40 घंटे काम करता है उसको मिलती है। तो आप कैसे कह रहे हैं ये वाली बात कि जी हमारे मुल्क के अंदर बड़ी कम कम तनख्वाहों के ऊपर काम करता है? और तीसरी बात ये वाली साइंटिस्ट जहाँ आपने बात की, मेरा दोस्त है, वक्फे नो बच्चा है वो वाला, उसने जमात आपकी जमात के लिए ना वो वक्फ की हुई है, साइंटिस्ट बन रहा है वो। 3.5 लाख का अगले ने मकान खरीदा। क्यों? भाई साइंटिस्ट तो बन रहा है कि कर तो काम गवर्नमेंट के लिए रहा है ना अगला, ठीक है? 6,000 यूरो उसकी सैलरी है, 3.5 लाख का उसने मकान खरीदा है अभी। क्या बात करते हैं यार आप लोग, झूठ पे झूठ बोलते हैं। और जब उससे हम सवाल करते हैं भाई ये जमात के लिए कर रहे हो, कहता नहीं भाई मेरा शौक था। वो अलग बात है, मेरे माँ बाप ने वक्फे नो करा दिया। आप मुझे ये बात बताए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वक्फे नो कराया जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कहता है कि जी हाँ जी मुझे वक्फे नो करा दें? इस वजह से वाटर भाई झूठ वो बोले हैं जो चलता है, और कम कम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें जी हमारे मुल्क तो जमात के लिए ये कर रहे हो। भाई हम खुद कहते हैं, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों की बात कहता हूँ कि भाई देखो जिस बंदे से पढ़ाई नहीं हो रही, जिससे कमाया नहीं जा रहा, जो कह रहा है मैं घर बैठ के आराम से खाऊंगा, जाके मुरब्बी बन जाए। निशान भाई वो कहते हैं मुझे जाके मुरब्बी बन जाए। वजह क्या? बैठ के खाना ना भाई। निशान भाई वो कहते हैं निशान भाई इनके मुरब्बी जो पैसा उठाते हैं उधार जमात से, वो अभी अलग है। वाटर साहब आप कॉल करेंगे तो मैं उठाऊंगा ना, आप कॉल डाल ही नजर नहीं आ रही। वाटर साहब को इधर ऊपर बिलाल ने थल्ले ला दे। वो आईडी प्राइवेट है ना। वाटर भाई कह रहे ने मेरे वास्ते स्पेस बनाओ, तो स्पेस हैगी है। वाटर भाई आ जाओ, उठाएं जी। आवाज किसी पिछों आ रही है? जिशान भाई तोड़े पिछों? एक मिनट, चिड़ियों की? हाँ मेरी तरफ से आ रही होगी। हाँ नहीं, चिड़ियां रखी हैं या कोई म्यूजिक चल रहा है? नहीं मैं इस वक्त बाहर खड़ा हूँ, चिड़ियां चेक। चलो वाटर भाई ने भी देने हैं ते अमर भाई हो ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੱਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। वाटर साहब आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम वाटर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है?
जी अल्लाह का फजल। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आपने याद साहब को उतार दिया, वही तो मेरे गवाह थे, मैंने तो ये बात ही नहीं की। अच्छा चलें, मैं कहता हूँ आपने की इम्तियाज़ भाई के ब्रोड के ऊपर। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल गलत फहमी हुई है, मैं मैंने ये खुद वाली मौजूद बात ही था, नहीं की। मैंने उसी वक्त मैसेज लिखा वहाँ पर कि वाटर भाई झूठ बोल रहे हैं, मुझे इम्तियाज़ भाई ऊपर लें। मैंने उसी वक्त मैसेज आप लिखा। याद साहब को बुलाए, मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैं कहता हूँ कि अगर इम्तियाज़ साहब की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी यूट्यूब पे, देख लें, ना निकला हो तो मुझे पता बिल्कुल, बल्कि मैं दीजिए। उनको मैंने कॉल डाली है, देखते हैं। सब देखें, सब देखें जो इम्तियाज़ भाई का ना। अच्छा चलें, उस बात को छोड़ दें, बताएं आपके मुबल्लग क्या क्या बताएं ज़रा थोड़ा सा अपने मुबल्लग मुरब्बियान के बारे में। बात दरअसल ये है कि मैं खुद तो मुरब्बी हूँ नहीं, ठीक है ना जी। और मुझे किसी की सैलरी से क्या, आपकी सैलरी अगर 5 लाख यूरो भी होए तो मैंने कौन से आपसे ले लेने हैं, या आपने कौन से मुझे दे देने हैं। तो इसलिए मुझे किसी की सैलरी से कोई मतलब गरज आपको मुरब्बियान की किसी तनख्वाह का, किसी भी चीज़ का कुछ इल्म नहीं है? नहीं। मुझे पता है, हमको पता है कितनी तनख्वाह लेते हैं आपके मुरब्बियान। जो आप कह रहे हैं उसके करीब करीब ही है सारे बेनिफिट्स और सब चीज़ें। हर मुल्क में जो भी मुरब्बियान रहता है वो उस मुल्क की बेसिक सैलरी लेता है कि नहीं लेता? बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल लेता है। गाड़ी जमात की तरफ से मिलती है? हाँ जी, हाँ जी। तो घर जमात की तरफ से मिलता है? कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सुन तो लेना, घर जमात की तरफ से मिलता है? आप पहेली ना बुझवाएं, आप आखिरी बात करें। पूछ सर, हाँ या ना में पहले पूछा ना, आपके सैलरी का पूछा। मैं आपको क्यों बताऊं, आप अगला अपना सवाल बताएं। तो सर यही बात आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी ब्रोड के ऊपर जाके ये नहीं कहना कि हमारे मुल्गान बड़ी कम तनख्वाहों के ऊपर काम। ये बात की ही नहीं है भाई। इम्तियाज साहब की आज की ब्रोड जो सी है ना, उस पर जाके खुद देख लीजिएगा। भाई इम्तियाज साहब की ब्रोड जिसने जाके देखनी है देख ले। हाँ जी, इम्तियाज साहब की ब्रोड पे जाके देख लीजिए, जहाँ पे साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, आपके नहीं कर रहे थे। मैंने साइंटिस्ट की बात ये की थी कि जो बात है उलमा अंबिया के वर्सा है, उस हवाले से की थी। क्या वर्षा आपने अपनी जमात के बारे में क्या की थी बात? आपने कहा था ना कि हमारी जमात के साइंटिस्ट बड़ी दूर दूर जाकर बड़ी कम तनख्वाहों के ऊपर साइंटिस्ट बड़े तजर्बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट की बात की थी, जमात के मुरब्बियों की बात तो नहीं की थी। आपने कहा कि हमारे मुबल्लिगीन जो उनसे हैं, बात की कि नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा। अगर आप ये वाली बात ला दें तो मैं कह रहा हूँ इम्तियाज साहब की ब्रोड के ऊपर आपने थोड़ी देर पहले दोबारा सुन ले, मैं लिख के बात करता हूँ। जब मैं कभी किसी अक्लमंद और मतलब के पढ़े लिखे बंदे, इम्तियाज जैसे बंदे के साथ बात करूंगा जो सीरियस बात करता है, वो भी लिख के कर रहा था और मैं भी लिख के कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ले आऊंगा। ठीक है, कोई मसला ठीक है, ओके। और बाकी बात ये है यार, हमने क्या मुरब्बियों को भूखा रखना है? वो काम नहीं करते, उनको तनख्वाहें नहीं चाहिए होती, उनकी जिंदगी नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो गाड़ी नहीं चला सकते, वो फिर क्या, उनको क्या समझते हैं? उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आप बाद में कहते हैं ना मुरब्बी हमारे तो लेते ही कुछ नहीं, वो तो सूखी रोटियां पानी में डुबोकर खा के गुजारा करते हैं, ये आप लोग कहते हैं ना। पता नहीं किसने कहा है यार, मैंने तो आज तक नहीं कभी कहा, ना सुना है ना देखा है। हमारे तो मुरब्बी बकायदा हमारे पेरोल पे होते हैं। चलें, गुड, अच्छी ये बात तो तस्लीम की ना आप। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो बंदा एक पूरी ड्यूटी दे रहा है, वो क्यों नहीं तनख्वाह ले? वो हकदार है तनख्वाह का। ए वाटर साहब, आज जुमे वाला कट्टा ते यार मुकाओ ना। हाँ जी, बैठे ने ए तुसां हर जुमे आंदे हो, वावा सारे में लादा तुसां पिछले कोई साल एक तो आ रहे हो ऐसे मेन। यार वो प्यार है मेरा उनसे, मैं उनको हर दफा कहता हूँ, वो बड़े जुमे छोड़ते हैं ना, तो इसलिए मैं उनको याद करवा देता हूँ कि आप इतने बड़े खत्मे नबूवत के मुजाहिद हैं, तो मस्जिद में आपको कोई बरेलवियों की घुसने नहीं देता। पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, बाहर की कंट्रीज में तो इस तरह का मामला नहीं होता। मैं खुद बाहर की कंट्री में हूँ, और इवन पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता कि जो बात आपने की है कि बरेलवी की मस्जिद के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, ये बात तो मेरे ख्याल में आपने शायद। और सर हर जगह पे भल्ले में जहाँ पे भाभीयों की मस्जिद। वाटर भाई, ये बात आपसे वैसे मैं एक्सपेक्ट करने से भी बहुत नीचे की बात है कि आपने कहा पढ़े लिखे बंदे हैं, तो पढ़ा लिखा बंदा तो। मैं आपको क्या बताऊं, मैं मॉडल टाउन जे ब्लॉक में एक वहाबियों की मस्जिद है, अगर आपका भी कोई मॉडल टाउन में पता करवा लें। अब्दुल्ला भाई, अच्छा ऐसे करते हैं, पहले 16वीं जमात पढ़ी है तो फिर पीछे पढ़ दे। वाटर भाई मेरी बात सुने, आप रहते थे मॉडल टाउन, मैं रहता हूँ वाबडा टाउन, ठीक है जी। 27 साल उम्र गुजारी है मैं पाकिस्तान दे विच, ठीक है जी। एक बार भी कोई कसम चकानी है, कोई कसम चका लो मेरे को। अच्छा। एक बारी ये वाला इंसिडेंट नहीं हुआ जो आप फरमा रहे हैं। भाई आप ऐसा करें, मॉडल टाउन मोड़ का पता है ना आपको?
जी पता है मुझे। मॉडर्न मोड़ के सामने ही जो है ना जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक में ना मार्केट के सामने है भाभीियों की मस्जिद, उसके बाहर बैठा होगा मुर्गियों वाला जीरा, और उसके जे सामने ब्लॉक में तो दुकानदार होगा साबरी। तो आप जे ब्लॉक में आप पता नहीं कब गए हैं, जे ब्लॉक में तो भैया आपको अगर पता हो तो इर्द गिर्द मार्केट है और दरमियान में उन्होंने एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बैठते हैं सब। ठीक हो गया भैया, सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी की ना उस जे ब्लॉक की मार्केट में गुजरी है हमारी, क्योंकि हमारा दोस्त रहता था। ठीक है भैया, पता नहीं कितने जुमे पढ़े हैं जहाँ बता रहे हैं, और कितने जुमे बाकी मस्जिदों में भी पढ़े हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि यार वलीद भाई आप कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं, इधर गए तो आपको कोई मसला हो जाएगा। ये आप जो कैसे बताऊं, आपको पता है कि सुन्नियों की मस्जिद ये ब्लॉक में कहाँ है? मैं कह रहा हूँ हमें तो यही तो आपको मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो आज तक किसी ने ये रोक कर नहीं कहा कि यार वलीद भाई ये